fraternity. Okay, these were the philosophy. This was the philosophy. Okay, this was the philosophy we want to establish in our nation, and for that we have adopted the fundamental rights, the elaborated provisions of the fundamental rights, and the directive principles of state policy taken from the American and Irish constitution. Already we have seen in the last class. The political part, okay, the principle of cabinet government, ये हमने लिया ब्रिटेन से. ठीक है, relation between the executives and the legislature, already we have taken from the British constitution and from the constitution of Canada, Australia, Germany, USSR, Union Soviet Socialist Republic. ठीक है, now Russia, now it is called as the Russia, France, South Africa, Japan. ये सब already we had started, and we had taken the various concepts of governance. What we have taken the various concepts of governance. बिल्कुल भैया, जितने भी थे concepts थे governance के, this we have taken from the concept. ठीक है, ये चीज, लेकिन as such नहीं लिए, not as such we are taken. Okay, this is a bill of rights. Yes, in US constitution the bill of rights is there, but we have adopted the same with certain modification. Yes, some reasonable restrictions we had put it. Okay, we had kept for the implementation of the fundamental rights. Those rights are not absolute. In India, fundamental rights are not absolute. They are qualified in nature, while in USA they are absolute. Okay, in other countries they are absolute. All right. Okay, like directive principles of state policy, these are binding in the Irish constitution, but in India it is not so. In India it is not so. They are not enforceable, but a policy maker has to keep in mind while making any of the policy. किसी भी policy को बनाते समय हमको ये ध्यान में रखना है. Okay, this is now the blend of rigidity and flexibility. Rigidity and flexibility. Rigidity means not easy to amend. Flexibility very easy to amend. भैया ये देखो, ये दोनों का blend है, इसीलिए अभी तक हम 104 टाइम्स अमेंड कर पाए. ठीक है, रिजिड है, इसीलिए लगभग 128 और 130 के अराउंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आ चुके हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं इन द पार्लियामेंट, बट अभी तक पास सिर्फ 104 ही हुए हैं. फ्लेक्सिबिलिटी है, यस, इजीली पास हो जाते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इजीली डिस्कशन के साथ पास हो गया. ठीक है, इस चीज आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट, यस, द अमेंडमेंट पावर टू द पार्लियामेंट. इट confers the amendment power. Two type के amendments हैं, बिल्कुल. Some provisions are amended by the special majority. क्यों है भैया? Rigid क्यों है? Why it is rigid? It is rigid like this. Special majority चाहिए. 2/3 कितना? 2/3, 2/3. ठीक है, जितने भी members हैं उनका 2/3 majority of each house present and voting. प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोट भी करने चाहिए. एंड द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. बहुत मुश्किल है भैया, इसीलिए रिजिड हो गया. प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी विद द रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, नो, क्योंकि फेडरल भी है. तो ये दोनों प्रोविजन ये बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी रिजिड है. यस भैया, 50% बिल्कुल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन को चेंज करना है तो पूरे नेशन को इफेक्ट करेगा. यस, इट विल इफेक्ट द एंटायर नेशन. तो उसमें स्टेट्स भी है, हमारा यूनियन है ना, फेडरेशन ऑफ द यूनियन. इंडिया इट इज नॉट अ फेडरेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज. तो जो यूनियन के जो यूनिट्स है, ठीक है, स्टेट्स है. ठीक है, तो काफी जो स्टेट्स है, ये जो स्टेट्स हैं इनका भी तो लगभग हमको मर्जी जानना है. ठीक है, इनका भी तो हमको चाहिए कि भाई व्हाट दे थिंक. ठीक है, अबाउट द वेरियस प्रोविजंस. पावर का डिवोल्यूशन अगर हमने कर दिया, मींस पावर जो है हमने उनसे ले लिया, ठीक है, डिसॉल्व कर दी उनकी पावर्स को, नो, ये चीज नहीं कर सकते. फॉर दैट वी नीड देयर रैटिफिकेशन. यस, परमिशन चाहिए हमको. ठीक है, ये चीज. तो दीज टू प्रोविजंस मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिजिड. बिल्कुल, इसकी अमेंडेबिलिटी को वो रिजिड बना देता है. बट सिंपल मेजोरिटी, यस, सिंपल मेजोरिटी, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बना देता है. ठीक है, एंड ओनली ऑफ द पार्लियामेंट. जैसे आर्टिकल 3 है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स. जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ, J&K के साथ हुआ, है ना. J&K को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, कैसे किया? आर्टिकल 3 को चेंज कर दिया, इसमें सिंपल मेजोरिटी काम में आ गई. ये फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दिया, ये चीज. ओके, ये फ्लेक्सिबल हो गया. सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स कंप्लीट चेंज हो गया. ठीक है, शेड्यूल 1 जिसमें स्टेट्स के नाम दिए होते हैं वो चेंज हो गया. आर्टिकल 370 रिपील हो गया. तो दिस इज द सिंप्लिसिटी, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, ये चीज जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं होता. ओके, तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्लेंड है दोनों में. ओके, रियल. नेक्स्ट,
फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फेडरल? सबसे पहले फेडरल वर्ड का मतलब क्या होता है ये जानो। ठीक है, देखो भैया सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई टेरिटरी है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। ओके, नाउ ये डिवाइडेड है वेरियस टेरिटरीज में। मान लो 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो है इसका पूरा एक ये यूनिट है। ठीक है, तो ये जो 5 टेरिटरीज, 7 टेरिटरीज हैं, ये 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, मान लो। ठीक है, ये 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, अभी अपन एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, ये 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। अब इन सातों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भैया हम सातों एक हो जाते हैं। ठीक है, हम साथ एक हो जाते हैं, और ये हमारा नेशन, हम एक नेशन का नाम देते हैं। हमारे ये यूनिट्स हो गए, और ये हमारी टेरिटरी हो गई, ये हमारी बाउंड्री हो गई, और हमारा एक सेंटर प्लेस हम बना देते हैं। ये हमारे इस पूरे नेशन का एक कैपिटल हो गया। बाकी हमारा अलग एंटिटी है। ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ, ये जो ग्रुप बना, दिस ग्रुप वी कॉल्ड एज द फेडरेशन। What we call this group is what we called as the federation. A group of different nations makes a nation. ठीक है, ये चीज डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज दे मेक्स वन नेशन। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका था, अमेरिका में ढेर सारे स्टेट्स थे, ये यूनाइटेड हो गए। ठीक है, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नाम पड़ गया। 13 कॉलोनीज थी इन द ईयर 1773 जब ये यूनाइट हुआ। 13 एंटिटीज वर देयर, और ये सब आपस में क्लब होकर एक फेडरेशन बनाया। ठीक है, विद अ सेंट्रल कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया में वॉशिंगटन को, एक शहर को ये चूज किया गया कि ये हमारा एक सेंट्रल का कैपिटल होगा। बाकी स्टेट्स के अलग अलग है। ठीक है, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग है, और स्टेट्स के हर सिस्टम भी अलग अलग है, लेकिन एज अ होल हम एक एंटिटी है। एज अ होल हम एक एंटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरेशन। ठीक है, ये चीज यूनिटरी में क्या होगा कि भैया ये सब डिसॉल्व हो गए स्टेट्स, और इसे एक सेंट्रल पावर थी, उसी ने इन सबको एक कर दिया। ठीक है, यस, क्या था? एक ये टेरिटरी थी, बाकी जितने भी जो ये स्टेट्स थे, ये सब डिसॉल्व हो गए, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, एक यूनियन बन गया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ यूनिटरी फंक्शन। अब देखो इन दोनों को मिला करके देखो, इंडिया में लगभग लगभग दोनों चीजें हैं। ठीक है, इंडिया में लगभग लगभग दोनों चीजें हैं। फेडरेशन में यहाँ पर ऐसे एंटिटीज आ गए स्टेट्स के फॉर्म में, है ना, जो इंडियन स्टेट्स है, लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये इंडियन स्टेट्स हो गए। ठीक है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है यूनिटरी। ये दोनों फीचर है, दोनों फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि फेडरेशन तो बना, लेकिन ये किसी एग्रीमेंट से नहीं आया। बस खाली हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ये टेरिटरीज, ये बाउंड्रीज में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे एंटिटीज में इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये चीज। हाँ बेटा, क्वासी फेडरल बोलते हैं ना, वही मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय द क्वासी फेडरल। ठीक है, यस लावण्या, आर्टिकल 368 अलाउ अमेंडमेंट बिकॉज दिस आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यस, नाउ इट इज 50। यस, बिल्कुल स्मार्ट विद्वान, बिल्कुल आप वो 50 स्टेट्स है। यस, ठीक है, कोई बात नहीं विजय, क्या हुआ? आर्टिकल 398 दीपिका, ओके दीपिका, आर्टिकल 368। ठीक है, ठीक है, ओके, ये चीज। ठीक है, ये हुआ इन दोनों वर्ड का मतलब। अभी मैंने देखो, हम लोग ये रटने को तो रट लेंगे, लेकिन ये दोनों वर्ड का मतलब समझना जरूरी है कि फेडरल क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है। तो अभी ये क्लियर हुआ आपको, फेडरल वर्ड का मतलब क्या हुआ और यूनिटरी वर्ड का मतलब क्या हुआ। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये इस फेडरल फीचर को, इस फेडरल फीचर को और हमारे इस यूनिटरी फीचर को कंबाइंड करके बनाया गया है। ठीक है, ये दोनों को कंबाइंड करके ये फीचर एक बनाया गया है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, क्लियर है? इसको ये स्टैब्लिश किया गया है। राइट नाउ इट कंटेन्स द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन। अब फेडरेशन के फीचर क्या होते हैं? फेडरल फीचर के फीचर्स क्या होते हैं? द गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट, बिल्कुल दो गवर्नमेंट है ना हमारे पास। सेंटर में भी दो गवर्नमेंट है, और एक गवर्नमेंट सेंटर की भी हो गई, एक स्टेट की भी हो गई। डिवीजन ऑफ पावर्स, यस, पावर्स का डिवीजन है सेंटर में भी और स्टेट में भी। हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है। ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, बिल्कुल सही। हमेशा ध्यान रखना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलवेज द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी देयर, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट विल बी देयर। ये हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था। ठीक है, ये चीज। यस, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड बिल्कुल है भैया। आर्टिकल 368 हम देख चुके हैं।
जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है और बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, हमारे पास 2 हाउसेस हैं सेंटर में। ये सब फीचर्स हो गए फेडरलिज्म के। तो ये फेडरल फीचर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। नाउ यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर मान लो आर्टिकल नंबर 249 है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। आर्टिकल नंबर 249 ये पावर देता है टू द इंडियन पार्लियामेंट, यस, यूनियन गवर्नमेंट को, कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के लिस्ट होते हैं ना, हमने बताया था आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट है, उस पर लॉ बनाने का जो राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है, वो खाली स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन आर्टिकल 249 ये पावर राज्यसभा को दे देता है। ठीक है, यस, वो बना सकते हैं, पार्लियामेंट बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि बस उठाया और 249 को इन्वोक किया और ओके बना दिया ना, उसके लिए भी कंडीशंस है। ठीक है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस खाली एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया एक चीज। तो भैया यहाँ पर सेंटर स्ट्रांग हो गया। ओके, कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप यूएस में नहीं है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन हमारे यहाँ कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप है। वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट द ऑफ एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, ये चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एंड सिंगल सिटीजनशिप, यस इट इज देयर, एंड अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, प्लस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्लाइटली फ्लेक्सिबल, क्योंकि कुछ भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से भी, हमने लास्ट वाले पार्ट में क्या देखा, सिंपल मेजोरिटी से, यस दैट इज द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्सेट्रा। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब यूनिटरी फीचर्स है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों फीचर्स अवेलेबल है। यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। इसीलिए ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से एक सिंगल यूनिटरी है। ठीक है, एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया भारत ओके लावण्य बाइकैमरलिज्म मीन्स 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल बेटा, और विजय एंटिल ओके, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, आई एम रियली सॉरी विजय, मैं आपका क्वेश्चन नहीं देख पाया, आई एम रियली सॉरी। आंसर यस, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इफ राज्यसभा पासेस, यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 249, बिल्कुल, रिक्वेस्ट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट, बिल्कुल। ठीक है, राज्यसभा, लेकिन यहाँ पर भी स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी है। अगर स्टेट जो है वो पार्लियामेंट के पास आते हैं तो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, वो रेटिफाइड करें तभी बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा ये चीज, तो वो पावर सेंटर को दे दिया गया। गॉट इट, ये चीज। फेडरेशन ये वर्ड कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं है, लेकिन हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स इट इज मेंशन हो गया। इसीलिए भैया फेडरल फीचर है और यूनिटरी फीचर है, दोनों का ब्लेंड है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ दीज टू फीचर्स, इसीलिए क्वासी फेडरल केसी वेरे इन्होंने कहा है। ठीक है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये चीज। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जॉन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रेनवेल ऑस्टिन, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग इट्स टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग, ये लोग बोलते हैं। ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, नाउ वी हैड अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल, क्यों किया, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन between the legislative and the executives। वहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन काम में आती है, बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव्स अलग है, लेजिस्लेटिव बॉडीज अलग है। ठीक है, हमारे इंडिया में इन दोनों का कोऑर्डिनेशन चलता है, लेकिन यूएस में खाली ये सुप्रीम है, यस, इसका कोई रोल नहीं है, इसे लॉ बना देगा। अब इस लॉ को इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, सेपरेशन, पावर का सेपरेशन है इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हम चाहते तो ये भी ले सकते थे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम लिया तो एक सिंगल पर्सन सुप्रीम बन जाएगा, हेगेमनी स्टैब्लिश हो जाएगी, डिक्टेटर भी बन सकता है, फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हमने मासेस को चुना। यस, हमने किसको चुना, मासेस को, यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करेगी, सेलेक्ट करेगी। ठीक है, ये चीज भैया यहाँ पर भी होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो इलेक्ट करती है वहां के हेड को, लेकिन हमने क्या किया, कोऑपरेशन को अडॉप्ट किया कि लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव्स आर अंडर द लॉ मेकिंग बॉडी। जैसे एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू whom, टू द लोकसभा। होता है कि नहीं होता? यस, ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इंक्लूडिंग द पीएम।
ओके ये चीज, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हैं तो लेजिस्लेचर दे कैन रिमूव दीज टू पीपल, बिल्कुल इम्पीचमेंट ये हो सकता है। ओके ये चीज, तो ये वाला पार्ट ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ये चीज फंडामेंटल डिफरेंस लेकिन अभी भी है। पैटर्न तुम्हारा बेस्ट है लेकिन अभी भी है। क्यों? इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। अरे यार ये क्या हुआ, हमने तो सोवरेनिटी बनाई है अपनी, वी आर द सोवरेन नेशन, लेकिन पार्लियामेंट हमारा सोवरेन नहीं है। क्यों? व्हाई इट इज सो? ऐसा कैसे हो गया? ये तो गलत स्टेटमेंट है। नहीं भैया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों सही स्टेटमेंट है? क्योंकि हमने, हमारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं, यस, जितनी भी पार्लियामेंट में जो भी पावर है वो कहां से डिराइव हो रही है? फ्रॉम वेयर वी आर डिराइविंग दिस पावर? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो भैया हमारे इंडिया में कौन सोवरेन हुआ? द मासेस, द पीपल, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दिस इज अ सोवरेन बॉडी, नॉट द पार्लियामेंट। ओके, जनता का राज। हाँ, ये जनता राज, गॉट इट ये चीज। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसा नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट वो सोवरेन बॉडी है, ठीक है। इंडियन स्टेट एज एन इलेक्टेड हेड, बिल्कुल रिपब्लिक है, लेकिन ब्रिटिश मोनार्कियल है, मोनार्की है, ठीक है ये चीज। तो आप कमेंट सेक्शन देख लें एक मिनट के लिए। आयुष कुमार, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, यस बिल्कुल सही बेटा, वो दे आर नॉट द सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर, ठीक है। यस, मैस मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल, ठीक है ये चीज। वेल, अब फीचर्स क्या है भैया? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रियल एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रूल, बिल्कुल भैया, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लेकर के आएगी, मेजोरिटी में होगी, वही गवर्नमेंट बनाएगी, उसी का एक पीएम होगा, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, बिल्कुल भैया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, collective responsibility is there. Membership of the ministers in the legislature, बिल्कुल ये भी है भैया। मिनिस्टर जो भी बनेगा वो या तो लोकसभा से मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा से, ठीक है ये चीज, इट इज ऑल्सो देयर। लीडरशिप ऑफ द पीएम और द सीएम, बिल्कुल लीडर, मेजोरिटी पार्टी का जो भी लीडर है उसको हम पीएम या सीएम बोलते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, हर 5 ईयर्स में, एवरी 5 ईयर्स ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ये चीज। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस वी हैड अडॉप्टेड। Synthesis of parliamentary sovereignty and the judicial supremacy, ठीक है ये synthesis of parliamentary sovereignty and the judicial supremacy doctrine, बिल्कुल it is a doctrine of sovereignty of parliament, ठीक है। लेकिन भैया मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में सुप्रीम है, यस, जुडिशियल सुप्रीमेसी इज देयर इन द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, ओके। लेकिन इंडिया के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम स्टैब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी कि भैया लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाएगा, वेदर इट इज अप टू द मार्क विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये कौन देखेगा? ये देखेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, दिस प्रोविजन इज नॉट अप टू द मार्क, दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ वहीं पर नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या होगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये चीज। ब्रिटेन में, अमेरिका में क्या किया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया गया, बट वी एस्टैब्लिश्ड द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, एंड द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक लॉ के अकॉर्डिंगली एक प्रोसीजर स्टैब्लिश हो गया है, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। एक लॉ बनाया कि भैया हम खाली इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि ओके जो ये प्रोसेस है, ठीक है, जो ये प्रोसेस है, ओके द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डिफाइन दैट्स, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसेस गिवन है, बट वी हैव टेकन द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विद द टाइम, एज द टाइम चेंजेस, भैया बहुत सारे रिक्वायरमेंट भी चेंज होते हैं, तो वहां पर हम प्रोसीजर को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ये चीज। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेफर्ड प्रॉपर सिंथेसिस, ब्रिटिश प्रिंसिपल को और अमेरिकन प्रिंसिपल को जो है ब्लेंड करके एक ये बनाया। यहाँ पर इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों का ब्लेंड है, ठीक है, बिल्कुल लेजिस्लेटिव बॉडीज, इन दोनों का ब्लेंड है, मिक्सचर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक रखे हुए हैं, ठीक है, यस, दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट, इट इज अ सुप्रीम कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। लेजिस्लेटिव बॉडी जितनी भी है वो कोई भी लॉ अगर बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट विल चेक वेदर इट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट।
इफ इट इज नॉट इट्स ओके, इफ इट इज देन वो इसको नल एंड वॉइड कर देगा लॉ को। ठीक है, अगर ये लगेगा तो भैया ये लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट अगर हर लॉ को चेंज कर रहा है तो ये अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बिल्कुल दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट दे कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट, ये था प्लान। अब आती है बारी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बिल्कुल हमारा जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं हर स्टेट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसके बाद लोअर कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। स्मार्ट दीवान बोलते हैं is the most essential feature of the parliament. No, 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 no. It is not so, beta. It is not so. It is not so. Okay. It depends upon the nation whether they want to adopt the written constitution they have to enact or they have to be the evolved one. ठीक है, ये चीज है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यूएस का और इंडिया का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस इट इज देयर बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। इंडिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। ठीक है, ये चीज। नाउ सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल तो सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी ये एनफोर्स किया है हमारे जितने भी सेंट्रल लॉज हैं, स्टेट लॉज हैं, इन सबको पूरे नेशन में यस एक सिस्टम एडॉप्ट किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, yes it is still intact, Sheikh Faisal, it is still intact, the basic feature is still intact, yes they can't। ठीक है, now state judiciary, high courts, these are the subordinate courts at the district and the subordinate courts at the district level। ठीक है, state level पर क्या आते हैं, high courts, central level पर क्या है, supreme court। ठीक है, and independence of judiciary, बिल्कुल कैसे, tenure of the judges, expenses of the supreme court, prohibition on discussion on the conduct of judges on the legislature and so on। बिल्कुल ये सारे के सारे इम्यून फीचर्स दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 124 पूरा इसके ऊपर डिपेंड, पूरा इसको डील करता है। ठीक है, टेन्योर ऑफ द जजेस, एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके ये चीजें। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोनों मिलकर के एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करते हैं। यस, डेमोक्रेसी के सिस्टम को स्टैब्लिश करते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, ये तीन टाइप के जो डेमोक्रेसीज हैं, इन तीनों को ये दोनों प्रिंसिपल्स मिल करके स्टैब्लिश करते हैं। यस, दीज टू आर रिगार्डेड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 32 को ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा है इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये दोनों रियल सेंस में है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरीके से वेलफेयर स्टेट को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर जस्टिशिएबल। ठीक है, एंड लेजिस्लेचर जस्टिशिएबल इन नेचर दीस आर। ठीक है, व्हाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दीस आर meant for promoting the ideals of social and economic democracy। ठीक है, ये चीज seeks to establish a welfare state in India, both these combinedly, ये चीज है। ठीक है, तो ये ब्लेंड है। जितने ज्यादा इलेबोरेटेड मैनर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, उतने इंडिया वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, इट इज नॉट देयर। ठीक है, ये चीज। Then fundamental duties, we had taken this from Russia। Original constitution में तो ये था नहीं, add किया गया। This was added by the 42nd Constitution Amendment Act। In total there are 11 fundamental duties। ठीक है, non-justiciable fundamental duties, बिल्कुल duty of a citizen, duty of a citizen, but these are not obligatory। ये add क्यों की गई? Why in 1976? Why these are added? Why? Reason क्या था? क्या था reason? बल्कि कुछ नहीं भैया, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप पढ़ोगे ना तो दीज आर बेसिकली द मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, दीज आर बेसिकली द मोरल प्रिंसिपल्स, मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, एथिक्स के ऊपर बेस्ड है ये चीज। ठीक है, ये चीज है, गॉट इट, ये चीज है। फर्स्ट टाइम हमने ये नहीं कि हमने रशिया से लिया, हमारे पास मोरालिटी नहीं थी, एथिक्स नहीं थे, ये चीजें बिल्कुल नहीं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो यू विल फाइंड दीज प्रिंसिपल्स विद सम मॉडिफिकेशन ऑफ द अशोकन एथिक्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, यस, अशोकन एथिक्स इट इज देयर। तो ये इंडिया में पहले से स्टैब्लिश है, लेकिन यस विद द टाइम, जैसे टाइम जाता है, ठीक है, मैनकाइंड के वॉलेटाइल है, होता है मैनकाइंड का नेचर, वो कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
ठीक है, वॉलेटिलिटी इन मॉरल प्रिंसिपल्स में आ जाती है। उसको फिर से स्टैब्लिश करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टैब्लिश किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, ये चीज कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग नहीं मानते, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। यस, ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये, प्रमोशन ऑफ द ऑल द रिलीजन्स इक्वली। स्टेट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, ये चीज सपोर्ट नहीं करेगा, और ये बहुत ही बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है भैया। यस, अ वेरी ह्यूज डिबेटेबल टॉपिक इट इज, ठीक है, ये चीज। नो प्रॉब्लम ब्रेव, कोई बात नहीं बेटा, इसका रिपीट देख लेना। एज इट कम, शेख फैजल बोलते हैं, एज इट कम टू फोर्थ इन दीस इयर्स दैट सेक्युलरिज्म वर्ड इज स्पेक्यूलेटेड एंड टू बी रिमूव्ड सून। हाँ बेटा, इट इज स्पेक्यूलेटेड, ऐसा सुनने में आ तो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं हटेगा, ठीक है। यस, और देखा जाए तो बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, एंड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी जो है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। प्रियवर्धन, हम लोग ये 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बिल्कुल मेंशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। जब हम पार्ट 4A देखेंगे उस टाइम पर हम लोग एन्यूमरेट करेंगे। अभी तो बस खाली ये है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमने बस एक वर्ड है ये यूज किया, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द थर्ड चैप्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, द एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये चीज। अभी अगर हम जाएंगे तो वो काफी लंबा सेशन खिंच जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव नो रिलीजन, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रिलीजन नहीं है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, ये स्टैब्लिश की गई है, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स, ऑल द कल्चर्स, माइनॉरिटीज, हर चीज के लिए। इसीलिए इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट ये बनाया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सेक्युलरिज्म जो वर्ड था, सेक्युलर स्टेट, ये नहीं था, ये इम्प्लिसिटली, यस, इम्प्लिसिटली डिफाइंड था। भैया दो वर्ड होते हैं ना, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब इनहेरेंट, और एक्सप्लिसिट मतलब एकदम खुल के एक्सक्लूसिवली बाहर आ गया, ठीक है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल पढ़ेंगे। डेफिनेटली वी विल रीड इन दिस, बिल्कुल ऐड होगा, ठीक है, ये चीज। पहले सेक्युलरिज्म ये इम्प्लिसिट था, लेकिन बाद में इसे एक्सप्लिसिट बना दिया गया जब हमारे प्रियम्बल में इसे जोड़ा गया, ठीक है, देन दिस वर्ड वाज एडेड इन अवर प्रियम्बल। ओके, ये चीज। वैसे अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, 14 है, 15 है, 16 है, ठीक है, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे के सारे ये फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर द आर्टिकल्स व्हिच एस्टैब्लिश द सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल ये भी है, ठीक है, ये पार्ट, गॉट इट, ये चीज। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यस, बहुत सारे नेशन है जहां पर ऐसा फ्रेंचाइजी का सिस्टम नहीं है, ठीक है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे जो है अडॉप्ट किया। पहले 21 ईयर्स का मिनिमम एज वोट करने का, इसको रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर्स इन द ईयर 1989 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। क्यों? वोटर्स का बेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, बेस बड़ा करने के लिए, ठीक है, 18 ईयर्स रिड्यूस कर दिया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज देयर इन द 21। भैया प्रॉपर्टी टैक्स ये सब था, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम, इसके बेस पर पहले फ्रेंचाइजी मिलती थी। अगर आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये चीजें थी। तो यहाँ पर इंडिया चूंकि पुअर नेशन था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए वोटिंग एज जो था वो 21 रखा गया, सिर्फ एज, ओनली एज वाज द पैरामीटर, वाज कैप। यहाँ पर ये बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। बिल्कुल भैया, हम लोग खाली इंडिया के सिटीजन हैं, स्टेट्स के नहीं है, इंटीग्रेटेड। सो ये यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड नेशन को बिल्ड करने के लिए ये फीचर को अडॉप्ट किया गया। सेम, हर स्टेट के सिटीजन को सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स गिवन है, इसीलिए ये कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप। Next, independent bodies. Various independent bodies are there, like UPSC, state PSCs, Auditor General, election commissions. Okay, emergency provisions. The elaborated emergency provisions are there to safeguard the sovereignty, unity, integrity, and the security of the country. बिल्कुल ये अडॉप्ट किए गए इमरजेंसी प्रोविजन। ओके, ये चीज। थ्री टायर गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे हमने जुडिशरी का सिस्टम देखा ना, ऐसे ही अब यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, अब इसके नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत, गांव लेवल पर म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना दिए गए।
ठीक है, ये चीज 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से। ये हो गया 3 टायर सिस्टम, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर एंड द थर्ड टायर। ठीक है, और ये इसी का ही पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया गया है। ये 3 टायर सिस्टम इंडिया का यूनिक फीचर है, क्योंकि ये वर्ल्ड में और कहीं पर नहीं है। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9 ये नया जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये जोड़ा गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2011, इट गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड द प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट ये स्टैब्लिश किया गया। एंड द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज आल्सो एडेड, 43B इट वाज आल्सो एडेड, द न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये चीज तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजंस थे। आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक ये आर्टिकल्स जोड़े गए। empowers the parliament ठीक है, empowers the parliament in respect to multi state cooperative society। ठीक है, ये चीज empower the parliament, ये इसको empower किया। ओके, गॉट इट, ये पार्ट। यस भैया, क्या डाउट है पूछिए। हाँ बिल्कुल भैया, सर करंट अफेयर्स विल आल्सो बी एडेड, बिल्कुल करंट अफेयर्स के साथ भी हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, है ना भैया। ब्रेव, पूछो क्या डाउट है। यस, कम ऑन, राइट योर आंसर। यस, इंडियन एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो रिलीजन। गुड इवनिंग राम कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। ना भैया, अब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज भी किया गया बहुत सारा। भैया बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी है, अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, कैसे हो गया भैया, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अन गांधीयन है, बहुत सारे लोगों ने बोला। एलिफेंट साइज है, ठीक है, पैराडाइज टू द लॉयर्स है, पैराडाइज टू द लॉयर्स है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, है ना, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, ओके, ये था। तो ये सब बेसिस पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, ये चीज। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट। आई एम रियली सॉरी, मुझे एक कॉल लेना पड़ा, बहुत देर से वो परेशान कर रहा था मेरे को, कॉल लगा लगा के, तो मुझे अर्जेंटली वो कॉल लेना पड़ा। आई एम रियली सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, नाउ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा 4:30, यस, 4:30 PM, संडे टू वेडनेसडे, संडे टू वेडनेसडे। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं होगी। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये हम 20 के बाद स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी मेरा एक और सेशन चलता है रात को 9 बजे। ठीक है, ये चीज, ये क्लास अपनी 4:30 PM पर डेली रहेगी। ओके, गॉट इट। ठीक है, ये चीज। ठीक है, और कोशिश हम करेंगे कि हम इसे कंटिन्यू रेगुलर ही रखें। ये जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का जो ट्रेंड है, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भैया, हो सकते हो रे भैया, बिल्कुल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो, यूपीएससी और पीएससी सिर्फ एक ही चीज मांगती है, और वो मांगती है आपकी ग्रेजुएशन। आपका मिनिमम एज लिमिट वो होना चाहिए, परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता। अब जैसे आपने बोला बेटा पंजाब पीएससी, है ना, पीएसईबी से किया है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे पंजाब के अगर आप एग्जाम दोगे, तो पंजाबी एक लैंग्वेज वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो फिर मैंडेटरी वो बना सकते हैं उसको। ठीक है, ये चीज बस, और कुछ। बेटा आईएएस बनने के लिए इंग्लिश से रिलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी वाले भी आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी में पढ़ो, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि आपको कंटेंट काफी अच्छा मिलेगा पढ़ने के लिए। और पढ़ते पढ़ते आपकी जो लैंग्वेज, जो इंग्लिश में जो वीकनेस है, वो भी एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम माय लैंग्वेज वर आल्सो वेरी वीक, मेरा इंग्लिश पे कमांड बहुत पुअर था, क्योंकि मैं भी एक छोटे से विलेज को बिलोंग करता हूँ। ठीक है, बट ग्रेजुअली आप वाइल रीडिंग रीडिंग रीडिंग, इंग्लिश इंप्रूव होती चला गया। ओके, इट इज डेफिनेटली, आई एम मेकिंग अ सेशन बेटा, बिल्कुल लावण्य, आई एम मेकिंग अ सेशन, बिल्कुल, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाए। ओके, आई विल डू एज आई एम प्लानिंग। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 12th या 13th अगस्त को हम ये सेशन रखेंगे। ठीक है, एंड आई विल इन्फॉर्म यू ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप।
टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उस पर मैं इन्फॉर्म भी करूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। और हाँ, आप लोग भैया फटाफट से जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इससे आपके और फ्रेंड्स आ जाएंगे, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा छोटा सा एक सेक्शन बचा है, द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। यस, क्या है भैया क्वेश्चन? रिया बोलते हैं सर, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएस मेंस फॉर पॉलिटी, विच बुक इज बेस्ट? लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, एंड फॉर द मेंस गो विद द करंट अफेयर सेक्शन, ठीक है, ऑलवेज गो विद द करंट अफेयर सेक्शन। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, शेख फैजल, यस, इंदौर सिटी। हाँ आयुष, ये हो जाता है बेटा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो जाता है। Okay, you have subscribed the YouTube channel, my channel also, है ना? Okay, विजय बेटा, आप कर सकते हो सीए। ओके, सीए के साथ भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो बेटा। ये जो जितने भी पर्सनल क्वेरीज हैं, आई सजेस्ट यू मेक मी अ पर्सनल कॉल, ठीक है, और जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल रिप्लाई ऑन योर मैसेज, ठीक है। अभी अपना क्लास का टाइम जा रहा है, अपन पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपन पूरा करेंगे यार, बिल्कुल यार, शनौर अपन बिल्कुल पूरा करेंगे। ओह गुड शेख, गुड टू सी यू फ्रॉम कश्मीर, गुड। वेल, अ शेड्यूल, नाउ हम लोग करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे 12 शेड्यूल है ना, 1 से लेकर के 12 तक जो डिफाइंड है, अब हम उनके बारे में देख लेते हैं कि एक एक करके क्या शेड्यूल है। क्यों हमने ये सेक्शन को क्यों पहले लिया? हमने इस सेक्शन को पहले इसलिए लिया क्योंकि क्या होगा, जब हम मेन बॉडी अगले क्लास से शुरू करेंगे, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल, फिर पढ़ेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, तो उनमें ये वर्ड्स आएंगे, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बार बार उनको डील नहीं करना पड़ेगा, तो हम पहले ही समझ लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द शेड्यूल्स? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, इट इज एन अपेंडिक्स, appendices or the annexures highlighting the list or the details mentioned in the main text, ठीक है। यस, ये शेड्यूल जो है, these are basically the annexures, annexures, ठीक है। लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल्स है, जो मेन टेक्स्ट में है वहां पर एक वर्ड डाल दिया शेड्यूल, और उसको बाद में पीछे मेंशन कर दिया। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्स। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, पर अब 12 शेड्यूल। यस, 9th 10th 11th एंड 12th, ये 4 शेड्यूल जोड़े गए हैं रिसेंटली। कैसे है भैया? फर्स्ट शेड्यूल, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, क्या ये डील करता है? द इंडियन स्टेट्स, द नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। अब देखो भैया, आप कोई भी जगह पर मान लो कि इंडियन कोई भी लॉ बना है, अब वहां पर ऐसा अगर एक वर्ड लिखना कि दिस लॉ, दिस पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल। अब देखो, दिस लॉ, ये एक स्टेटमेंट में बना रहा हूं, सेंटेंस है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन स्टेट्स या ऑल इंडियन टेरिटरीज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लो इस वर्ड की जगह पर मैं जितने भी हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, ये बार बार मेंशन करता चला जाऊं, तो सुंदर क्या लगेगा? यस, अच्छा क्या लगेगा? अपीलिंग क्या लगेगा? ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। इसीलिए ये शेड्यूल्स है, इसीलिए ये एनेक्शंस है। तो इस टाइप की जो लिस्ट है, जैसे ये तो एक नाम है, एक स्टेट्स की नाम का एक एग्जाम्पल है छोटा सा, तो ये शेड्यूल कहलाते हैं। इनको हम लोग एनेक्चर्स बोलते हैं, जो कि एकदम लास्ट में डिफाइंड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम एंड में दे रखे हैं। बस टाइटल मेंशन कर दिया यहाँ पर मेन बॉडी में, इतना गॉट इट, ये चीज कि भैया वहां से वो रेफर कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या करता है? इट डील्स विद द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। यस, ये जितने भी 28 स्टेट हैं और जितने भी 8 यूटीज हैं, इन सब के नाम दे रखे हैं फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, उनके नाम दे रखे हैं फर्स्ट शेड्यूल में, गॉट इट। सेकंड शेड्यूल, द सेकंड शेड्यूल, इट डील्स विद द सैलरी, इट डील्स विद द सैलरी, यस, एमोल्यूमेंट्स, अनाउंसेस, प्रिविलेजेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आर्टिकल्स और देख लें एक बार, आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल्स जो है वो 1 and 4, ये 4 आर्टिकल डील करते हैं, दो आर्टिकल डील करते हैं इस शेड्यूल से, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में जो आर्टिकल आते हैं 59, 65, 75, 97, 125, 148 एंड 158, 164, 186 एंड 221। भैया देखो, डरो मत, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आर्टिकल्स आपको जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वैसे वैसे याद हो जाएंगे। मेन सार क्या है कि जो सेकंड शेड्यूल है, ये सार मेन नहीं है, इट इज नॉट द इंपॉर्टेंट वन, ये नहीं भी याद होंगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
लेकिन ये चीज याद होना चाहिए कि सेकंड शेड्यूल जो है वो सैलरी से डील करता है, लेकिन सैलरी भी सबकी नहीं, सिर्फ कुछ ऑफिशियल्स की। कौन कौन की? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा, ठीक है, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द विधान परिषद, दैट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज सीएजी। बिल्कुल भैया, खाली ये लोग हैं जिनका सैलरी सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है, एंड दिस सैलरी इज चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ एक और भैया, कोई भी ऑफिशियल का सैलरी जब सेकंड शेड्यूल में मेंशन हो जाता है, तो जब बजट आता है तो उस समय पर उस पर्टिकुलर ऑफिशियल का सैलरी जो फिक्स्ड है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहां पर वोटिंग नहीं हो सकती, उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये चीज तो ये फिक्स है। गॉट इट? ये चीज गॉट इट? ये तो ये दे रखा है, दिस इज देयर सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, शेड्यूल बनाने की जो जरूरत थी, ठीक है, जब आपने ये पूछा है और एक क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, बेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉपुलेशन के बेस पर अगर एक पर्टिकुलर रीजन का एक होमोजीनियस रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कल्चर रिलीजन, सॉरी नॉट द रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, तो वहां पर उसको एक पॉपुलेशन का बेस बड़ा है तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए उसको स्टेटस दे दिया गया स्टेट का, और अगर वो छोटा है उसको इजिली हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो ओके दैट टेरिटरी इज कॉल्ड एज द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। लावण्य बोलते हैं स्टेट गवर्न बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूटीज आर गवर्न बाय द यूनियन, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है। अब आयुष आपका क्वेश्चन है कि ये शेड्यूल बनाने की जरूरत क्या थी? देखो बेटा, मैंने आपको बताया ना, सुंदरता। भैया हम बार बार, आप जैसे फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जितने भी इंडियन स्टेट्स के नाम और यूटीज के नाम है, हम बार बार उस जगह को मेंशन करेंगे, बार बार उन नाम को मेंशन करेंगे, तो इससे अच्छा ये है कि वहां पर एक वर्ड मेंशन कर दो, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो चीज, तो वो वन वर्ड को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और फिर उसके बाद में उसको वहां पर आके शिफ्ट कर दिया गया। गॉट इट? कंसोलिडेटेड फंड, ये गवर्नमेंट का फंड होता है बेटा, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। आर्टिकल नंबर 280 या 260 शायद इसको बनाता है, ठीक है, इसमें पूरा गवर्नमेंट का पैसा इसके अंदर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का पूरा पैसा इसके अंदर होता है। नीड टू कन्वर्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बिल्कुल। अब जैसे जे एंड के को यूटीज में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, तो लद्दाख और जे एंड के यही तो बनाए गए, ठीक है, ये सेंटर का कंट्रोल हो जाएगा। अब वहां पर लेजिस्लेचर का इतना कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, यस, सेवेंथ शेड्यूल जो हमारा 8th पार्ट है जो यूनियन टेरिटरी से डील करता है, उसमें पब्लिक ऑर्डर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, ठीक है, ये चीज इसीलिए यूटी बनाया जाता है। काफी डिस्टर्ब स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसीलिए जो है उसको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बना दिया। तो हम लोग ध्यान रखना है, सेकंड शेड्यूल है वो हमारा सैलरी से डील करता है। देन कम्स द थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल इट फॉर्म्स द ओथ, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, इन तीनों का जो सैलरी है, सॉरी इन तीनों का जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है, बाकी सबका ओथ थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है, हमको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड शेड्यूल इज डील, थर्ड शेड्यूल डील्स विद द ओथ, थर्ड शेड्यूल डील्स विद द ओथ, ओथ और एफर्मेशंस, ठीक है, शपथ जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, सबका है। आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, सबका है, पर इन तीनों ऑफिशियल्स का नहीं है, ठीक है, इन तीनों ऑफिशियल्स का नहीं है। अब इन तीनों ऑफिशियल्स कहां पर मेंशन्ड है? मेन बॉडी, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 59, सॉरी आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 69 एंड आर्टिकल नंबर 159, ये मेंशन है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है। थर्ड शेड्यूल इट डील्स विद द ओथ। देन कम्स द फोर्थ शेड्यूल,
Fourth schedule, it deals with the allocation of seats to the states and UTs in राज्यसभा. बिल्कुल राज्यसभा में किसने कितने स्टेट्स को कितना कितना सीट्स मिलेगा वो सब वहां पर दिया जाएगा. ओके. फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है. ठीक है, ट्राइबल एरिया से. सिक्स शेड्यूल स्पेशल प्रोविजन है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इनके लिए. बाकी सारे के सारे एरियाज एडमिनिस्टर हो रहे हैं यहां से फिफ्थ शेड्यूल से. गॉट इट. ये चीज. नेक्स्ट है सेवेंथ शेड्यूल. ये शेड्यूल जो है ये डिवीजन ऑफ पावर से डील करता है. डिवीजन ऑफ पावर. पावर किसकी? लेजिस्लेचर की. लेजिस्लेट क्या करता है? लॉ बनाता है. लॉ किसके ऊपर बनाएगा? किसी भी एक सब्जेक्ट या मैटर के ऊपर बनाएगा, है ना. ये चीज. तो सेवेंथ शेड्यूल में ये सारी चीजें हैं. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट मेंशन है. ठीक है. यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स. ठीक है. जब ये लिस्ट बने थे तब 97, 66 एंड 47 रेस्पेक्टिवली ये सब्जेक्ट्स मेंशन थे. ये सेंटर स्टेट रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. यस, ये जो है फेडरलिज्म या फेडरल फीचर से डील करता है. ये ध्यान रखिएगा भैया, फेडरल फीचर से ये चीज डील करती है. सेवेंथ शेड्यूल जो है इट डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ऑलराइट. ये चीज तो ये ध्यान रखने वाली चीज है भैया, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी सब आएगा मेन बॉडी में भी जब हम पढ़ेंगे. एट शेड्यूल इट डील्स विद द लैंग्वेजेस. यस, recognized by the constitution. Originally 14 languages थे लेकिन अब 22 languages है. ठीक है. आसमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये सब लैंग्वेजेस हैं. ठीक है. इनिशियल लेवल में हम बात करें तो सिंधी. यस, सिंधी इट वाज दिस लैंग्वेज was added in the 21st by the 21st Constitution Amendment Act. ठीक है. सिंधी भैया देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंधी, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. सिंधी, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, कोंकणी. ठीक है. एक और है यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार, मणिपुरी एंड नेपाली. ठीक है. मणिपुरी एंड नेपाली. ये देखो जो मैंने एनसर्कल की है ना लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस हमारे मेन शेड्यूल में नहीं. ठीक है. आसमीस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, 14. ठीक है. 14 लैंग्वेजेस. ये देखो मैंने मार्क कर दिया है. ठीक है. जो जो एनसर्कल किए, गोला बनाया जिन पर एनसर्कल किया है जिनको, दीज लैंग्वेजेस वर नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ऐड किया गया सिंधी. तो ये क्या हुआ? दिस इज द 15th लैंग्वेज. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब करंट वाली बात हम बात करते हैं. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अभी बताता हूँ क्यों. दिस इज द 15th लैंग्वेज. फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट से 1992 ये 3 लैंग्वेजेस और ऐड किए गए, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली. तो 1992 में कितनी हो गई? 18 लैंग्वेजेस. और फिर उसके बाद 4 more languages were added in the year 2003 by the 92nd Constitutional Amendment Act, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली. 96th अमेंडमेंट एक्ट से 2011 में सिर्फ उड़िया का नाम चेंज किया गया. उड़िया लैंग्वेज को ओडिया लैंग्वेज ये कहा गया. ठीक है. नाउ अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा तुलु लैंग्वेज के बारे में. तुलु लैंग्वेज के बारे में, है ना. यस, इसको 8th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करने की बात चल रही है अभी. ठीक है. यस, द प्रेशर हैज बीन एक्सर्टेड. ये जो लैंग्वेज है ये एंशिएंट फॉर्म की लैंग्वेज है, द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है. और कर्नाटका और केरला में ये लगभग, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है केरला में और मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां पर ये लैंग्वेज जो है बोली जाती है. लगभग लगभग देखा जाए तो ये इस रीजन की नेटिव लैंग्वेज है. और मोर देन अ मिलियन पीपल, यस, मोर देन अ मिलियन पीपल ये लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं. ठीक है. तो इसीलिए ये अभी एक इश्यू उठाया गया, लास्ट ईयर का इश्यू है. ठीक है. कि भैया इस लैंग्वेज को, तुलु लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए. ठीक है. ये चीज. ओके. ये करंट अफेयर्स हो गया. तो हमारा 8th शेड्यूल जो है वो तुलु लैंग्वेज के काम में आता है. एक पॉइंट मैं भूल गया बताते बताते आप सभी लोगों को, वो है हमारा 6th शेड्यूल. यस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. इसने डिमांड किया है अभी कि जो लद्दाख है, यस, लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन 90% ट्राइबल पॉपुलेशन. ठीक है. इसीलिए
तो ये दोनों शेड्यूल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, और साथ ही साथ में अभी एक और आने वाला है एंटी डिफेक्शन लॉ, वो भी बहुत न्यूज में है। ठीक है, यस, तो ये था हमारा 8 शेड्यूल। अब ये जो 8 शेड्यूल है, ऑल दीज 8 शेड्यूल्स वर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ऐड किया 9th शेड्यूल। ठीक है, यस, बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये पास हुआ 1951 में, ये आर्टिकल, ये शेड्यूल हमने ऐड किया। ठीक है, क्यों था? डीलिंग क्या थे इसमें, लेजिस्लेशन, इसमें क्या रेगुलेशंस आए? ओरिजिनली 13 थे, अब 282 हो गए हैं। टू एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। ठीक है, टू एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ, ये एक्ट क्यों बनाया, ये शेड्यूल क्यों बनाया गया? भैया कोई भी लॉ बनाया, कोई भी लॉ बना, उसको लिया और 9th शेड्यूल में डाल दिया। हमने अभी एक टर्म देखा ना, जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी मैंने आपको बताया कि कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पर 9th शेड्यूल से एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है ये एबॉलिश किए गए। ठीक है, और इसको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। अब भैया लॉ तो बना प्रॉपर्टी राइट्स को एबॉलिश करने का, इससे क्या इन्फ्रिंज हो रहा है, क्या वायलेट हो रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था मेरे भैया, राइट टू प्रॉपर्टी 1951 में था, इट वाज अ फंडामेंटल राइट। तो बाद में हटाया क्या है, तो ये वायलेट होता तो गवर्नमेंट क्या करे, उन्होंने उठाया एक नया शेड्यूल बना दिया, बोले कि जो भी लॉ इसके अंदर आ जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा। यस, टू प्रोटेक्ट the law included in it from the judicial scrutiny on the ground of the violation of fundamental rights. Got it? इसीलिए ये 9th शेड्यूल बनाया गया। बहुत बड़ा केस चला, बहुत सारे केसेस चले। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के जितने भी लॉज हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जितने भी लॉ डाले गए हैं इसमें 9th शेड्यूल में, ऑल आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ऑल आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो इम्यूनिटी 9th शेड्यूल में लॉज को दी गई थी वो अब यहां से हटा दी गई। गॉट इट? 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया। नेक्स्ट 10th शेड्यूल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है ये? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। आया राम गया राम पॉलिटिक्स, आया राम गया राम पॉलिटिक्स, ये एक वर्ड यूज किया गया था भैया। गया गया लाल थे, ठीक है, 1973 और 1970s का ही बात है। एक दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करे इन्होंने, और उसके बाद फिर भजन लाल, ठीक है, भजन लाल सीधे कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, हरियाणा के थे ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मेंबर ऑफ असेंबली। ठीक है, ये सीधे के सीधे कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, गवर्नमेंट गिर गई। तो यहाँ पर 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने फिर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ इसको लेकर किया है। ठीक है, ये चीज ओके। कुमार अभिषेक क्या बोलते हैं, सर अगर जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो गया तो डज जुडिशियल पावर टू चेक द लेजिस्लेचर हैज बीन वायलेटेड? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो। देखो क्या था, वैसे तो जो भी लॉ बनता है, जो भी लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, हाँ, आया लाल गया लाल, हम तो आया राम गया राम बोलते हैं बेटा इसको, मतलब ऐसा जुमला सा बना दिया है इसको। ठीक है, देखो बेटा अभिषेक क्या है कि जो भी लॉ यस, जो भी लॉ लेजिस्लेचर से बनता है, ठीक है, दिस इज available for judicial scrutiny कि whether it is violating judicial review, whether it is violating the any of the breaching any of the basic feature given in the Indian Constitution or not। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट ये बेसिक फीचर है। 1951 में ये केस था कि फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया और ये चीज वो लॉ उस शेड्यूल में डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिर लॉज बनाए गए बाय द गवर्नमेंट जिनका जुडिशियल स्क्रूटनी हो पाना मुश्किल हो गया, लो दो वो वायलेटिव थे, दो दीज वर द वायलेटिव। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भैया 1973 से पहले के 1974 के पहले के जितने भी लॉज हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद के जितने भी लॉज हैं वो सब जुडिशियल रिव्यू में आएंगे। ये हुआ अपना बेसिक पार्ट। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप पूछते हो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो गया
So does judicial power to check the legislature has been violated? No. नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सर्टेन लॉज जो भी गवर्नमेंट के वैसे तो अब जो भी लॉज गवर्नमेंट बनाती है वो डायरेक्टली अब जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर में आते हैं कि वेदर दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, ये चीज गॉट इट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें गवर्नमेंट बना सकती है, स्पेशली द लैंड रिलेटेड लॉस। ठीक है, यस, वो चीज तो वो जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी भी नहीं आएंगे ये चीज, गॉट इट, ये पार्ट। अब हम आते हैं 11th शेड्यूल पर। 11th एंड 12th शेड्यूल बहुत ही आसान है क्योंकि ये पंचायत सिस्टम से और म्यूनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ये जोड़ा गया था 1992 में, और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इसको ऐड किया गया, बट दिस केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1993। Okay, thus 11th schedule it deals with the panchayats and the 12th schedule it deals with the municipalities. That's all. सिर्फ इतना ही पार्ट हमको इन दोनों शेड्यूल में जानना है। ठीक है, हाँ बेटा, ये बिल्कुल पोलियो केस ये सब जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, बिल्कुल मिनर्वा मिल केस, वामन राव केस, चंद्र कुमार केस, यस। ठीक है, हाँ बिल्कुल सत्कृति, ये आ गए हमारे एमसीक्यूज। अब आ गए हमारा एमसीक्यू का सेक्शन, बिल्कुल। ठीक है, ये सार्थक नहीं, सतकृत आयाराम गयाराम गयालाल वॉज द मेंबर ऑफ असेंबली इन राजस्थान। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन में अब 3 पॉलिटिकल पार्टी चेंज किए, तो वहीं से आयाराम गयाराम जैसी जो पॉलिटिक्स है ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, यानी कि आज हम एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कल हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हो गए, परसों हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो गए। तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ द एमएलएस। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग, इसके ये वर्ड पॉलिटिकल साइंस में यूज होता है, हॉर्स ट्रेडिंग। तो इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ ये लाया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। पीएम ओथ कम्स इन 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, अब हम आते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। चलिए भैया एमसीक्यूज देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जय श्री राम। गुड इवनिंग पूनम। Yes, consider the following statement regarding the Regulating Act of 1773. बेटा नेम हार्ड नहीं है, वो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, छोटे छोटे फॉन्ट है ना, आंखें कमजोर हो गई है मेरी। सत्कृत, इट इज सत्कृत। बेटा ये हम आर्टिकल 280 जब डील करेंगे ना तब उस समय डील करेंगे, अभी नहीं। अभी हम हमारे सेशन पर चलते हैं एकदम एक लाइन से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे। वेरी गुड, स्मार्ट। आपने दिया आंसर ओनली 2। अभिषेक कुमार भी बोलते हैं बी, वन का बी, गुरसिमरन बी, लावण्या बोलते हैं ए, और शेख फजल बोलते हैं डी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, Supreme Court was established at Calcutta with Lord Impey as Chief Justice and 3 other judges. Governor General was kept subordinate to the Supreme Court in matters of judicial administration. This sentence गलत है। यस, तो हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये सही है। ओनली 1 इज द राइट आंसर। क्यों, मैंने आपको बताया था ना, ये एक्ट में फ्लॉ था कि कौन सा लॉ एडमिनिस्टर करेगी सुप्रीम कोर्ट, वेदर गवर्नर जनरल की काउंसिल इसके अंडर में आएगी कि नहीं आएगी। और फिर बाद में 1776 का एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को खाली इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा के लिए ही जुडिशियल जस्टिस डिलीवर करने के लिए ही कहा गया था। ओके, ये चीज गॉट इट। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हमारे जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना वो सब पुराने सेशन से रिलेट भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आज का जो सेशन पढ़ा था उसी से एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, बिल्कुल पुराने भी सेशंस आएंगे जिससे आपका रिवीजन होगा। बिल्कुल, रिवीजन इज मस्ट, इट इज मैंडेटरी रिवीजन। और हम एक एमसीक्यूज अभी एक फुल टेस्ट भी करेंगे इसमें, बिल्कुल, वो भी शेड्यूल पूरा बना हुआ है एमसीक्यूज रिलेटेड, पूरा एक सेशन एमसीक्यूज का होगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, हमारी पूरी पॉलिटी तैयार होगी हमारे इस सेशन के साथ। ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड्स नहीं आ पाए हैं, लाइक करो, शेयर करो इस सेशन को, जिससे आपके वो फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर सकें इस सेशन को। सो वेल, आए आगे वाले सेशंस को भी।
बिल्कुल करेक्ट बता दिया, इनकरेक्ट समझ के नहीं बेटा, पर वो इनकरेक्ट थोड़ा ना था, आपने तो करेक्ट ही तो पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। हाँ, ये चीज। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो बेटा, एमसीक्यू सॉल्व करने का सिर्फ एक ही फंडा है, हम पढ़ते सभी हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स जैसी एग्जाम में हम लोग फ्लॉप कर जाते हैं, हम लोग क्लियर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? पहला कारण, हम नर्वस होते हैं। नर्वस नहीं होना भैया, पहला कारण। दूसरा कारण, पेशेंस रखो, बहुत टाइम है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। हम क्वेश्चन को रीड नहीं करते अच्छे से, लेंदी क्वेश्चन होता है, हम लोग को लगता है यार बाप रे बाप ये क्या क्वेश्चन आ गया, बहुत टफ है, बहुत टफ है। बिल्कुल टफ नहीं होता, ठीक है। ये चीज है, जब तक आप उसको रीड नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको उसकी इजीनेस समझ में नहीं आएगी। ओके, ये चीज, तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, नर्वस मत होना, ठीक है। बी स्टेबल, बी कूल, बी काम, हमेशा। आपका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकेगा, ये मेरा मंत्र है भैया, 4 बार प्रीलिम्स क्रैक किया है मैंने, ठीक है, चारों बार, 4 अटेम्प्ट होते थे हमारे टाइम पर। मैंने पहला प्रीलिम्स क्लियर किया फाइनल ईयर के साथ, बिल्कुल, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में मई मंथ में एग्जाम था, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स थे, और उसी के साथ साथ मैंने मेरा प्रीलिम्स 2002 में क्लियर किया था, ठीक है। ये चीज, तो प्लीज हैव पेशेंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीड द क्वेश्चन केयरफुल, ठीक है। ये चीज कभी गलत नहीं होगा। अब इसके आंसर हमारे पास आए गए ढेर सारे, हम देखते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एजुकेशन वॉज गिवन इंपॉर्टेंस इन दिस एक्ट, गलत है भैया। क्यों? क्योंकि 33 में ये था ही नहीं, ये तो 13 के एक्ट में था, 1813 के एक्ट में था, ठीक है। मैकेले वाज अपॉइंटेड एज अ टेम्पररी लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेटमेंट सही है भैया, ये गलत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको याद हो कि गवर्नर 1833 के एक्ट से क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये अपने लेजिस्लेटिव पावर से डिवाइड कर दिए गए, बिल्कुल। और एक टेम्पररी लॉ मेंबर ऐड किया गया एंड दैट वाज मैक्विले, बिल्कुल, ये था, ठीक है। 4 मेंबर की काउंसिल थी, 3+1 4, इसमें एक और टेम्पररी मेंबर ऐड किया गया 1, इसको हम लोग लॉर्ड मैकेले बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया बी। हमने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, consider the following statement. वेरी गुड लावण्या, वेरी गुड, ठीक है। यस, आप बिल्कुल सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। मैंने तो अपने फाइनल ईयर में, बल्कि फाइनल सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। यस, दिसंबर मंथ में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी। सर मेरा टेलीग्राम चैनल है @UPSC अमित मोदी, ठीक है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Government of India Act 1919 established provincial autonomy in the British provinces. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established hierarchy at central level with the establishment of upper house also. With the which of the following statement is correct? यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, 1919। अब करो आप आंसर, ठीक है। Yes, 1990 established hierarchy at the central level and with the establishment of upper house also. Which of the above statements is or are correct? Welcome Anand, welcome to the class. Very good विजय, कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, इन दोनों के साथ में एक साथ कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अभी से सिविल्स का तैयारी शुरू करो और सीए पर कंसंट्रेट करो सबसे पहले। बिल्कुल अनिरुद्ध, मेडिकल 3rd ईयर में हो, बिल्कुल यू हैव एम्पल ऑफ टाइम विद यू, ठीक है। धीरे 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 पढ़ना शुरू करो, ग्रेजुअली। चलो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताऊंगा सारी चीजें, अभी हम लोग फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम अपना टिकिंग हो रहा है बेटा, टाइम बचा नहीं है। यस, आयुष बोलते हैं ए आंसर है, इसका जो है, बिल्कुल बेटा, इसका जो है कोई भी स्टैब्लिश सही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। बिकॉज 1919 का जो एक्ट है, इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ब्रिटिश प्रोविंसेस से नहीं लाई गई थी, वो 1935 के एक्ट से लाई गई थी, ठीक है। और डायरकी सेंटर लेवल पर भी 1935 के एक्ट से आई थी, तो नीदर वन एंड नॉट टू इज करेक्ट, ठीक है। ये ये चीज, ठीक है, ये पार्ट, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। और आप में से किसी ने भी इसका आंसर डी नहीं लगाया, आई थिंक सो। ये सो चिन्मयानंद आपने लगाया है डी, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। अनिरुद्ध ने आपने लगाया है, अनिरुद्ध बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। ये चीज, नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
The idea to constitute a constituent assembly for formulating Indian constitution was first mooted out by the Indian National Congress in 1934. Sir Stafford Cripps was not the member of cabinet mission plan that came to India in 1946. Which of the above statement is or are correct? Come on, इसका आंसर फटाफट दो. वेल डन आयुष, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड. ये इसका आंसर डी सही है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो मेंबर नहीं थे. ही वाज एम एन रॉय. ठीक है, जिन्होंने ये दिया था. ही इट वाज नॉट द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड द स्टेफोर्ड क्रिप्स वाज द मेंबर. बिल्कुल, ये नॉट जो शब्द है ना, ये नहीं होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट गलत होता. इसलिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो नीदर वन नॉर टू आर करेक्ट. वेल डन. ठीक है, वेल डन. यस बेटा. Consider the following statement. The Government of India Act 1935 contains the provisions for establishing All India Federation of Indian States and princely states in India. Indian National Congress demanded separate electorate for women in the second roundtable conference held at London. Which of the above statement is or are correct? बिल्कुल कर सकते हो संजय, क्यों नहीं कर सकते? सत्कृत, मेरा नाम बहुत आसान है, अमित मोदी. Okay, now this question. The Government of India Act 1935 contains the provisions. बिल्कुल सही संत, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने. ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है, बिकॉज इट कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया. दो ये फेडरेशन एक्सिस्टेंस में नहीं आया, क्योंकि जब तक ये आ पाता तब तक वॉर शुरू हो गई और प्रिंसली स्टेट्स इससे बाहर ही थे. ठीक है, ये चीज. एंड दिस वॉज द इनकरेक्ट सेंटेंस. बिल्कुल ये इनकरेक्ट है. डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन तो कभी था ही नहीं ऐसा. तो इसलिए इसका आंसर ए है. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. The first cabinet of Free India was constituted in August 1947. Sardar Vallabhbhai Patel was appointed as the Home Minister of India. Which of the above statement is or are correct? हमारे एमसीक्यूज के सेशन ऐसे ही होंगे बेटा, बिकॉज बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तुरंत फैक्चुअल नहीं, दो तीन फैक्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है. ठीक है, अभी तो ये लेवल मैंने जीरो से भी नीचे रखा है. ठीक है, पर हम धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे. इंडियन पॉलिटी की टेंशन बिल्कुल नहीं. पूरा महीना हम इंडियन पॉलिटी पे कमांड हासिल करेंगे. बिल्कुल पूरा एक महीने के अंदर हम कमांड हासिल करेंगे इंडियन पॉलिटी के सेक्शन पर. आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इंडियन पॉलिटी का. बिल्कुल संजय, आप कर सकते हो. बी. ओके, इसका आंसर आया बी. ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू. आहा, क्या करते हैं आप लोग भाई. हरि किशन यादव, बिल्कुल हरि किशन भैया, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया. इसका आंसर सी सही है भैया. फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया was constituted in August 1947. First cabinet, it was there. Yes, 15 ministers थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब बने थे भैया, है ना. यस, सरदार पटेल ही वाज द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम. ये स्टेटमेंट सही है हमारी. अगर आपने पॉलिटी की बुक पढ़ी हो तो उसमें देखो लास्ट में टेबल दे रखा है. ठीक है, पॉलिटी की बुक में लास्ट में टेबल दे रखा है ये चीज. ओके, ये चीज ये है. नेक्स्ट. Consider the following statement regarding cabinet mission plan that came to India in 1946. Consider the following statements regarding the cabinet mission plan that came to India in 1946. Yes, Vijay, आपका ठीक था, बिल्कुल. Well done. A constituent assembly of 399 members was formulated under the plan. As per the plan, the assembly should have 93 members nominated by the princely states of India. Oh, very good. Which of the above statement is or are correct? Come on.
यस, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर आएगा 389। ठीक है, यस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसका आंसर भी सही है। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यस, बिल्कुल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, election of Dr. Sachidanand Sinha, appointment of Sir B.N. Rao, adoption of objective resolution. Arrange the above events in chronological order and select the correct answer from the codes given below. बिल्कुल सत्यव्रत, मैंने बी लॉक किया और आप जीत सकते हैं एक राइट आंसर। यस, अब इसका आंसर देखें। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शन ऑफ डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, अपॉइंटमेंट ऑफ सर पी एन राव एंड एडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बिल्कुल सही संत, 1 2 3 4 एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट मीटिंग 9th December 1946। फिर दिन he was elected as temporary president in the same session। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ बी एन राव 11th December 1946। थर्ड ये है 22nd January 1947। एडॉप्शन है ना ये चीज, तो ये आंसर, ये 1 2 3 4, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म्ड डुअल रोल आफ्टर 15th August 1947। After the Indian independence, the strength of Constituent Assembly was not changed. Which of the above statement is or are correct? Yes, is or are correct. The Constituent Assembly performed dual role after 15th August 1947. After the Indian independence, the strength of Constituent Assembly was not changed. 4:30 Isha daily 4:30, Monday to Wednesday, Sunday to Wednesday 4:30 p.m. is the class time. Well done. ओनली वन इज द राइट आंसर। बिल्कुल, इट परफॉर्म द डुअल रोल। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी और साथ ही साथ में प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी थी। ठीक है, ये गलत है, तो स्ट्रेंथ चेंज हो गई। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, consider the following features of Indian Constitution: Office of Governor, Parliamentary Government, Rule of Law, Emergency Provisions. Which of the above feature has been adopted from Government of India Act 1935? Yes, come on. सत्कृत, इसका आंसर ए नहीं होगा यार। शांतनी, शांतनी बोलते हैं डी। वेरी गुड बेटा, इट इज 1 and 4। यस, द ऑफिस ऑफ गवर्नर, द इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने लिया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Indian Constitution is the lengthiest constitution of the world. Indian Constitution has adopted dual but independent judicial system. Which of the above statement is or are incorrect? भैया यहाँ पर देखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बेटा। देखो हमने क्या पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ दी आर इनकरेक्ट। ठीक है,
ये चीज, तो वी हैव अडॉप्टेड द डुअल, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। Britain was the first country in the world to adopt parliamentary form of government. Which of the above statement is or are incorrect? Yes भैया, इनकरेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा कि एमसीक्यूज में 100% एक्यूरेसी तभी होगी जब आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे। अगर आप उसको अच्छे से रीड नहीं करोगे, जल्दबाजी में रहोगे, नर्वस रहोगे, तो हमेशा गलतियां होंगी। ठीक है, ये चीज अब देखो, इसको भी देखो फटाफट से। फिर वही गलती करी आप लोगों ने। देखो इसमें लिखा है इनकरेक्ट। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ब्रिटेन, इट इज ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यस, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सही है, तो वन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज। यस, यू गेस, योर गेस इज सही दीपक कुमार, योर गेस इज एब्सोल्युटली सही। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर। The concept of judicial review in Indian Constitution has been adopted from the Constitution of USA. Which of the above statement is or are incorrect? Well done, Satkrit, well done. हाँ, आपकी बात ठीक है बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ, मैं सारे आंसर्स देख रहा हूँ। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर सत्कृत बोलते हैं बी। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा यूके का है, न्यूजीलैंड का है। ठीक है, कर दिया आपने। आयुष, वेल डन बेटा, डी इज द राइट आंसर। नीदर वन नॉर टू आर इनकरेक्ट। देखो मैंने यहाँ पर फिर से पूछा है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ये वर्ड है इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमने क्या पूछा है, इनकरेक्ट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो नीदर वन नॉर टू आर इनकरेक्ट। ओके, नीदर वन नॉर टू आर इनकरेक्ट, गॉट इट, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज बीन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये बाय की जगह वर्ड आएगा फ्रॉम, अंग्रेजी भी सही नहीं बनाते हैं यार। which of the following feature has been adopted from the constitution of Germany? Yes, jaldi, come on, quick. क्वासी फेडरल मीनिंग्स दीपक, ना तो पूरी तरह का फेडरल आधा, नो, ब्लेंड, फेडरल प्लस यूनिटरी, इसका ब्लेंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी फेडरल, और वी कैन से दैट हाफ फेडरल। ठीक है, और वी कैन से दैट स्यूडो फेडरल। ठीक है, ये चीज। Yes, absolutely correct. C is the answer. Suspension of fundamental rights during emergency. ये हमने वीमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। So friends, आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सेशंस का बेनिफिट उठा पाए। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो। मैं अभी इस सेशन का पीडीएफ इसके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, एंड अगर आपको लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये कोड का यूज कर सकते हो, अमित मोदी 2 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो 9479812018, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी अगर आपके डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी आपका क्वेरी हो, आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करो, इस नंबर पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, भले इंस्टेंट ना कर पाऊं, थोड़ा सा लेट कर पाऊं, लेकिन रिप्लाई आएगा जरूर। ठीक है, ये चीज, ये नहीं कि आज किया तो 1 महीने के बाद करूंगा, ऐसा भी नहीं है बेटा। ठीक है, जल्दी कर दूंगा। ठीक है, ये चीज है, गॉट इट।
ठीक है, तो ये नंबर है। बाकी ये सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी आपको पीडीएफ इसका थोड़ी देर में मिल जाएगा इसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, थैंक यू।